Good afternoon to all. We are fortunate to have with us Dr. Satish Bharadwaj, who is the head of the Department of Emergency Medicine at Kailash Deepak Hospital, who would be telling us about the stress relieving techniques and the way of life, which is a sustainable way of life. So all of us are dealing with such issues which may leave a secondary impact on us sometimes. We are dealing with the vulnerable sections of the society. We are hearing the traumatic incidents on a daily basis. Certainly it sometimes may have an impact on us physically as well as mentally. So I think it would be a good opportunity for all of us to hear the thoughts of Dr. Satish Bharadwaj regarding this, as to how we can make our lives better, how can we inculcate a way of life wherein we can periodically re-energize our mind and body by way of positive thoughts and a positive lifestyle. I would request Naveen sir to share his thoughts on this. Thank you, Abhinav. Good afternoon. अभिनव ने थोड़ा बैकग्राउंड हमें दे दिया है. बैकग्राउंड डॉक्टर साहब हमारा ये था कि काउंसलर्स के लिए हम जो पॉक्सो विक्टिम्स के लिए हमने काउंसलर अपॉइंट किए, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बना रहे थे. तब सामने आया कि केयर ऑफ द केयर गिवर भी होनी चाहिए. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हम सब जानते हैं कि वल्नरेबल सेक्शन के लिए काम करते हैं. सारा दिन यही रहता है कि कैसे हम किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आ पाएँ. तो उस डेडिकेशन और एफिशिएंसी से जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी एक मेंटल और फिजिकल री एनर्जाइजेशन चाहिए. डॉक्टर भारद्वाज से मुलाकात हुई, इज़ वेरी सीनियर डॉक्टर. तो उन्होंने कहा कि हम CPR टेक्निक प्लस जो आपका फर्स्ट एड है, लाइफस्टाइल में जो हम कई गलतियां कर जाते हैं, कैसे लाइफस्टाइल को हमें मेंटेन रखना चाहिए सो दैट वी रिमेन मेंटली एंड फिजिकली फिट. उसको देखते हुए फिर हमने ये प्रोग्राम रखा है अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, सो दैट अगेन केयर ऑफ द केयर गिवर. ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डॉक्टर सतीश भारद्वाज से कहेंगे कि अपना वो सेशन स्टार्ट करें. वेलकम डॉक्टर साहब. Thank you very much, and it is a great opportunity. Also, I would request Learned Special Secretary Sri Naveen Gupta to welcome Dr. Satish Bharadwaj with the potted plant. thank you. As we have gathered here, and the intent is to make some lifestyle changes, if at all we can do, to make our lives better, because it is care of the caregiver. And having practiced critical care, emergency medicine for the last 30 years, I have seen how it has evolved and how have we changed the approach to person who has serious medical emergencies, including cardiac arrest, heart attack, and how we can actually prevent it. We actually can prevent it, because I have personally talked to people who have had cardiac arrest, have come to hospital with this emergency, that these symptoms of uneasiness, chest pain, and discomfort, they start at least 24 hours before the event. So your system always gives you a premonition, an information before it is going to happen. Something bad it is going to happen. In Japan, they say there are birds which will tell you that the earthquake is going to come, or some animals will start squeaking in a different way. Those are difficult to understand interpretations, but the body is very smart. Everybody's. And most important to highlight is
We are all genetically the same human beings, but we are wired differently. But these warning signs come to us in the same way. Whether I'm going to go into hypoglycemia, a diabetic person, he has low sugars, and he comes to know, or she comes to know, that the sugar is low. Or the heart attack, which we normally encounter as chest pain, which always comes to us with warning signs. So my idea of talking to you, very short conversation today, 40 minutes, 35, 40 minutes, you should learn to understand very important vital sign is your own body, what it says to you. You get up in the morning, you're not well. And nobody, you will not go to a doctor with a normal blood pressure, temperature, heart rate and say, "Sab kuch theek hai, go home." So you're not well. So that is what you need to catch on. Heart attack, etc. is a little far off. We are too right onto the curve. But these signs you have to understand. So, but everything boils down to the heart. Everything is heart attack. During COVID, we've seen respiratory failures. We've seen people dying of respiratory problem. So we improvised some devices at home to see the oxygen saturation, pulse oximeter. These are only guidelines for us. So what we are most important to understand is that the deaths which happen due to cardiac arrest are increasing in number. The deaths are increasing, and the age group people have cardiac arrest is decreasing. Now in the emergency, I find heart attack happening in boys and girls as early as 27, 30, which was never there when I started medical college. In my medical college days, heart attack was 65, 70, and they used to say, "Baba ji ko saans nahi aa rahi, heart attack ho gaya." And the treatment we had in that time was painkiller, no drug, painkiller, and let him rest. अपने आप ठीक हो जाएंगे. From that era to the era which we are now, that we have drugs and we have angiography within 10 minutes. We call it door to balloon time. From the time the patient reaches my hospital to the time angiography is done, it is now marked as 10 to 15 minutes. If I don't do it, I'm not complying with it. And it includes then angioplasty and other things. And we have this happening every day. And it is such a routine that it is part and parcel of life. What was far-flung about 20 years seen as something remote, which angiography was planned, now it is done immediately. So we have come a long way. Number of deaths are increasing because of the stress which we are encountering every day. I think, let me discuss or just say a word about the stress. What about a student or a teacher which is teaching Veena to some students? Yes. अगर मेरे पास एक वीणा का टीचर है जो म्यूज़िक सिखाता है, उसके पास 4 स्टूडेंट हैं, उनको सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे वीणा सिखाता है या वायलिन सिखाता है, तो उस सिखाने में उसका स्ट्रेस लेवल क्या है? Probably close to very low. He would only be saying कि तुम सुर ठीक से नहीं लगा रहे. अब यही स्ट्रेस का कारण या सिचुएशन देख लो, क्लास टीचर जिसके पास 40 बच्चे हैं, उसके बाद वही स्ट्रेस अगर किसी कॉलेज में टीचर है, फिर कोर्ट में आकर दोनों क्लाइंट्स के वाद विवाद में जो जज साहब बैठे हैं उनके दिल पे क्या बीत रही है. ही इज अ ह्यूमन बीइंग. ही विल गेट इमोशनली चार्ज्ड towards the person who's more aggrieved or more indifferent towards the person less aggrieved, besides the rule of law, उसके को छोड़कर. तो आपका स्ट्रेस आपकी लाइफस्टाइल है. उस लाइफस्टाइल में आपने कैसे जीना है वो आपकी कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग. So that we have to inculcate into our life. The risk of cardiac arrest or cardiac diseases are modifiable. उनको हम चेंज कर सकते हैं. वही बातें हैं पुरानी, insufficient
एक्टिविटी, अल्कोहल यूज़, कंजम्पशन ऑफ टबैको, हमारे लिपिड्स खराब हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन. The cardiac arrest happens less in less polluted countries. Now, that's a debatable question for you, but it has been ये confirm कर दिया जा चुका है कि pollution से problems होती हैं, including cardiac problems. So, इसके आंकड़े भी हैं जो हमारे पास लिखित हैं. So, हार्ट अटैक के दो मेजर कारण और दो मेजर सिम्टम जो आपने दिमाग में रखने हैं वो चेस्ट पेन है. कभी भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, हॉस्पिटल में जाना है. ऑफ कोर्स हम सोचते हैं कि हॉस्पिटल में शायद बिल बना देंगे, ईसीजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. बिसाइड्स द पॉइंट, आपके लिए अपनी शरीर या अपने माँ बाप का शरीर या बॉडी ज़्यादा ज़रूरी है. उसमें हम मिस भी कर जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर मुझे किसी ने फालतू में मैं आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर हॉस्पिटल और ए सेटअप. Anywhere you go with chest pain, you will be given to get an ECG done. ECG करवाएंगे, आपका एक ब्लड टेस्ट करेंगे कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ड्रॉप आए. वो करने से आपको लगेगा फालतू है, कोई बात नहीं. वो करने से अगर आप एक दिन हार्ट के हॉस्पिटल में रात को रह भी जाएंगे तो आपके लिए सेफ है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंस्टीट्यूशंस, नॉट पर्टिकुलरली वन और टू. कई बार मिसयूज भी हो सकता है, बट देन जनरली इट इज़ इन योर गुड हेल्थ. So let's take that in mind that this is important. और सर्वाइवल, अगर मुझे हार्ट अटैक है तो या चेस्ट पेन हो रही है तो विद इन 10 to 15 मिनट्स मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है किसी तरह. मैं एक दोस्त का नाम नहीं लूँगा, वो खुद कार्डियोलॉजिस्ट है, एक हार्ट हॉस्पिटल में कार्डियक इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट है. उसको जब रात को चेस्ट पेन हुआ तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि भाई मुझे हॉस्पिटल ले जा. छोड़ो, ऐसा तो होता रहता है तुम तो ही सेज नो, आई एम हैविंग चेस्ट पेन. तो वो खुद गाड़ी उठाकर अपने हॉस्पिटल में गया. उसको हार्ट अटैक हो रहा था. उसने चेस्ट पेन के बाद, हार्ट अटैक के बाद एंजियोग्राफी हुई. एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी हुई. तो उसने 10:30 बजे मेरी वाइफ को फ़ोन किया कि बच्चों को ले आना, आज मैं नहीं आऊँगा, मैं हॉस्पिटल में हूँ. सो ये क्यों हुआ कि वो खुद डॉक्टर था और वो चेस्ट पेन को फील कर रहा है. नो ग्रजेस अगेंस्ट वाइफ, बिकॉज उसको शायद उस वक्त नहीं फील हुआ होगा, बट लाइफ पार्टनर को जाना चाहिए था. मैं उसका नाम डाइवल्ज नहीं करूंगा बिकॉज वो अच्छा नहीं लगेगा, बट ऐसा होता है. सो इसमें सूझबूझ या इंफॉर्मेशन या जान बचाने का श्रेय उस डॉक्टर को खुद जाता है क्योंकि वो खुद समझा इन सिम्टम्स को. तो ये क्यूमुलेटिव चीज़ें हैं. मैं सिंस मेरा प्रोग्राम यहाँ पर था तो मैं आपके लिए कुछ प्रोग्राम के लिए कोई ऐसी स्लाइड चाहता था कि मैं ढूंढूं कुछ और मटेरियल ढूंढूं कि कैसे होता है कोर्ट में. तो ये पाया गया है, डॉक्यूमेंटेड सर्वे है यूनिवर्सिटी ऑफ हमारा किसी से, कि रिस्क ऑफ हार्ट अटैक डबल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिवोर्स. आजकल तो आपने डिवोर्स बहुत जल्दी कर दिए हैं, छोटे कर दिए. खैर ये डिवोर्स कोर्ट भी नहीं है, बट फिर भी डिवोर्स का टाइमिंग जो है वो छोटा करना भी ठीक नहीं है. बिल्कुल क्विक डिसीजन से भी प्रॉब्लम होता है. सो ड्यूरिंग, बिकॉज सबके लिए ऐसा नहीं है, बट जनरली ये डॉक्यूमेंटेड सर्वे है, द हार्ट अटैक्स हैपन इन द फर्स्ट मंथ्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, बिकॉज all people cannot take the stress of a disease, and they have suddenly a death during the sleep or during the daytime. And this is not what I'm speaking from my experience, but this is a documented study in the world which they have done. So the stress does have a straightforward attack or effect on your heart. I am showing small pictures of plaques in the heart. मतलब हमारी हार्ट के वेसल्स जो है बंद हो जाते हैं, वो मतलब फैट से, वो बड़े एक easily रिप्रेजेंटेबल स्लाइड है जिसको आप समझना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करते. नाउ जब हो गया, जब हार्ट अटैक हो गया और कोई आदमी अनकॉन्शियस हो गया, तब क्या करना है. सो आप सबके पास अपने मोबाइल फ़ोन में जहां आप रहते हैं
अभी हमारे देश में एम्बुलेंस सर्विस का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि नंबर बोला और कोई पर्टिकुलर एम्बुलेंस आपके लिए आ गई, या कैट्स की या किसी की, उसमें थोड़ी परेशानियां हैं, बट वो आई थिंक विद टाइम वो सेटल हो जाएंगी। बट तब तक आपको अपने आप को या अपने निकट संबंधी को अस्पताल ले जाना है, बड़े वाले टर्शरी केयर, छोटे नर्सिंग होम में नहीं ले जाना है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी एंजियोग्राफी की या किसी चीज़ की नहीं होगी। खाली अस्पताल में जाकर ईसीजी कराने का मुझे फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मैं उस वक्त समय लूज़ कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास जो भी बड़ा हॉस्पिटल है आप उसको मत सोचिए, बिकॉज इमरजेंसी में सबसे पहले आपका ईसीजी होगा, एक टेस्ट होगा आपका या निकट आपके संबंधी का, तो उससे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो छोटे नर्सिंग होम में मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका अपना काम है प्राइमरी केयर में, बट कार्डियक केयर में या स्ट्रोक की केयर में उनका काम नहीं है, बिकॉज अगर उनके पास इमेजिंग नहीं है, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी नहीं है, तो आपका मुकम्मल इलाज नहीं हो पाएगा। सो चूज़ योर हॉस्पिटल वाइजली, और अपने मोबाइल फ़ोन में उस हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के नंबर रख लें इमरजेंसी के, वो आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज जनरली ऑल हॉस्पिटल्स दे रिस्पॉन्ड विद एन एम्बुलेंस सर्विस टू योर होम। आपके निकट जो हॉस्पिटल है उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। सेकेंडली, मेरे हिसाब से आपके कोर्ट में भी एक मशीन है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसके इंस्टॉलेशन 1 से 2 जगहों में ज़रूर होनी चाहिए, जो कि शायद होगी भी, तो और उसका इस्तेमाल भी मोस्ट ऑफ यू को, आप सबको आना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद उस मशीन के लगाने से मेरे लाइफ के बचने के चांसेस मोर देन 40% हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक जब हमारा हार्ट बंद भी होता है तो ऐसे एकदम स्टॉप नहीं हो सकता, हो जाता है, वो अभी भी उसमें कुछ जान होती है, तो इलेक्ट्रिकली हम उसको ज़िंदा कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। मैंने एक स्लाइड अभी डाली स्पेशली स्पोर्ट्स रिलेटेड सडन कार्डियक अरेस्ट। आजकल बहुत लोग स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, सुबह उठ के 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर या मैराथन भी करते हैं, तो आपका हार्ट उसके लिए रेडी है या नहीं भी अपने डॉक्टर से ज़रूर चेक करें, बिकॉज नॉट एवरी हार्ट कैन टेक दैट स्ट्रेस। सो स्पोर्ट्समैन को जो हैं उनको भी कार्डियक अरेस्ट होता है, हाई एंड स्पोर्ट्स में, स्पेशली सॉकर, रनिंग, स्विमिंग, इसमें भी, और जिसमें कि उस सडन कार्डियक अरेस्ट में हम समझ नहीं पाते क्या है। सॉकर की गेम, फुटबॉल की गेम तो आज की डेट में शुरू ही नहीं होती है कि अगर डॉक्टर एईडी समान नहीं हो तो गेम ही नहीं शुरू करेंगे। फीफा का गाइडलाइन है कि 2 डॉक्टर, 2 एम्बुलेंस, 2 एईडी और समान नहीं होगा तो फुटबॉल नहीं होगी। बॉक्सिंग से भी ज़्यादा डेंजरस है। नाउ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, मैंने इस हार्ट अटैक के और इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करी। आज की डेट में आप बहुत कॉमनली एक वर्ड यूज़ करते हो, सुनते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू आर नॉट इंटेलिजेंट, तो ऐसा लगता है, लेकिन यह है कि हमें उसको किसी ना किसी तरह से अपने लिए यूज़ करना चाहिए। आज की डेट में हार्ट रेट और पल्स रेट और सैचुरेशन देखने वाली मशीनें आपके हाथ पे लगी हैं, एप्पल वॉच है या दूसरी वॉच है, इनका अच्छा यूज़ करें। मैं किसी भी ब्रांड के लिए नहीं बोल रहा, बट इससे आपको बहुत सादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम जितना भी स्टैटिस्टिक्स है हमारे वर्ल्ड में वो सब नंबर्स पे है, वो नंबर इज़ एन इन्फॉर्मेशन। अब आपका हार्ट कैसे चल रहा है उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, बट अगर आप देख लोगे कि मेरे हार्ट की गतिविधि इस वक्त 108 है, 9 है या 90 है या 70 है, दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन। और एप्पल वॉच इटसेल्फ ने कई बार लोगों के हार्ट अटैक को बचाया है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। आई एम नॉट एंडोर्सिंग ए वॉच, बट देन इस तरह की और वॉचेस हैं जो बहुत सस्ती हैं और बहुत हेल्पफुल है। मेरे ख्याल से सबको यूज़ करनी चाहिए अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से। उस इंफॉर्मेशन में आपकी रात की स्लीप भी है, पैटर्न भी है, एंड दैट कैन ऑल्सो डिटरमाइन आप कैसे सोए, कैसे किया। ये सब चीज़ें अभी लॉन्ग टर्म में नहीं, अभी
हमारे लिए ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को अपनाइए, बिकॉज इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है 24 आवर्स, मेरा ECG, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन, ये है, ये मुझे ही इन्फॉर्मेशन देता है जो कि मैंने कैसा मेरा हार्ट चल रहा है। आज की डेट में छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जिसके खाने से मेरे पेट का सिस्टम, इंटेस्टाइन का सिस्टम, उसकी हम फोटो लेते हुए नीचे आ सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं इम्प्लांटेबल डिवाइसेस। थोड़े समय के बाद ऐसा भी होगा कि इस तरह के इम्प्लांट हमें, जैसे हम पैदा होते हैं, हमारे में ट्रेडिशन है कान छेदने के, नाक छेदने में, वो इम्प्लांटेबल डिवाइस डाल देंगे। वो डिवाइस ये ऐसा हो रहा है स्विट्ज़रलैंड में। ये मैं कोई स्टार वॉर्स मूवी में से नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है। हमें करने में हमारे पास बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, हम क्यों कैसे, हम अपने नाम पर, अपने हाथ पे तो नाम लिखवा लेंगे कि मेरे नाम पे मैं सीता से प्यार करता हूँ या मेरी गर्लफ्रेंड ये है, लेकिन वो डिवाइस नहीं लगवाऊंगा। यू कैन सी इवन अस हैविंग टैटूज ऑल ओवर द बॉडी। अब टैटू इतना बड़ा करवाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो डिवाइस डलाने की अगर बात होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज डिवाइस विल डेफिनेटली गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये सब हो रहा है, हो चुका है, सिर्फ आने की ज़रूरत है। तो वो जैसे आपका आधार था, तो आधार में आपका ID है, तो उस ID से आप सब कुछ कर रहे हैं, वैसे ही वो डिवाइस है। वो डिवाइस आने से आपको फट से उसका आपका पूरा इन्फॉर्मेशन कोड में आ जाएगा, आपको कहीं जाने की प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चीज़ें में थोड़ा सा समय लगेगा। सो आप काफ़ी कंफ्यूज हो चुके होंगे इस बारे में, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं। स्ट्रेस आ गया डॉक्टर साहब, सब स्ट्रेस आ गए, सब स्ट्रेसफुल हो गए, और स्ट्रेस को बस निकालने के लिए मैंने जो काम लोगों में सीखा है, अपने भी सीखा है, बहुत ज़्यादा जिम जाना, बहुत ज़्यादा ये करना ज़रूरी है। जिसको शौक़ है कुछ उम्र में, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो थोड़े से ज़िंदगी जी चुके हैं 40-50 साल में, तो सबसे बड़ा जिम है आप खुद, और सबसे बड़ी एक्सरसाइज है मौन। अगर आप वो कर लें तो आप अपने हार्ट अटैक को बचा सकते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख के मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और सबसे मुश्किल ये एक्सरसाइज है, अगर आप रात को सोते समय जब बत्ती बंद भी होगी तब भी आप अपने आप को मौन करना चाहेंगे तो आप मौन नहीं हो पाएंगे। मैं कोई गुरु इत्यादि नहीं हूँ, मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ। ये मौन रहने से आपका, आप चेक करो अपनी मशीन में, हार्ट की मशीन को, कि जब आप सो रहे हो तो 94 है, और जब आप मौन होना चाहते हो तो बड़ा कौतूहल है दिमाग में। आपके दिमाग में जैसा चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं तो 525 ख्याल आते हैं कि पता नहीं ख्याल बैठे ही हुए हैं घूमने के लिए, और मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूं, और उस ख्यालों को रोकते रोकते मैं सो गया। और उसको कम करने के लिए मैं सोचता हूँ मैं कैसे 94 को 80 करूँ, वो नहीं हो रहा। तो ये प्रैक्टिस करनी है, वॉकिंग एट्सेट्रा। डाइट मेरा फोटे नहीं है, मैं इसमें इस वक्त बोलूं, क्योंकि वो हर एक आदमी अपने प्री फॉलो करता है। एंड माइंड यू, यू कैन नॉट फॉलो वन डाइट ऑल योर लाइफ, यू विल हैव टू चीट, यू विल हैव टू डू दिस, यू विल हैव टू डू दैट, वो नहीं है। बट बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेयर द वर्ड, वेरी गुड हिंदी वर्ड विच इज देयर, विच कॉल्ड सम्यक, appropriate, that has to be used. So keep that in mind. Some exercise is important all the time. आधा घंटा ज़रूर करना है, चाहे आप मशीन देखकर करें, चाहे खुद करें, चाहे कैसे भी करें, या अपने पेट के साथ करें, बट वो आधा पौना घंटा एटलीस्ट 5 times a week is important. Now to demonstrate to you how we handle a cardiac emergency, I will come on the dummy. Since there are so many people, you can also try after the program is over. This is not difficult, and because training everybody personally is a challenge, but you should understand that this is the first thing I would like to tell you, the very important thing, that this is not something you cannot do. This is something which we do regularly, I would say 4-5 times a week, and in the intensive care maybe more often. And this technique saves lives in intensive care, because we have a lot of armamentarium there with the oxygen, machine, devices, तो हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है. Challenges outside the hospital. तो outside the hospital कार्डियक अरेस्ट को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज पहले मुझे समझना है कि कार्डियक अरेस्ट है,
मैं इसको अप्रोच करूं या मैं साइड से निकल जाऊं, क्योंकि कुछ हो गए कि मेरे बस का तो है नहीं। तो मैं कह रहा हूं एटलीस्ट अपने निकट संबंधियों को हेल्प करने के लिए सीखें, अपने माँ बाप को, अपने मित्रों को, या जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं उसमें किसी को हो जाए तो आप हेल्प करोगे, तो उसके लिए सीखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अंडरस्टैंडिंग वेयर द हार्ट इज। योर हार्ट इज ऑफ द साइज ऑफ योर फिस्ट, इट इज लाइंग इन द चेस्ट, पीछे छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि हमें चोट ना लगे तो भगवान ने इसके आगे लंग्स भी रखे, हल्का सा कवर है, तो इसको हमने दबाना है। हमारे वेंट्रिकल जो 4 कमरे हैं हार्ट के, उसमें 2 वेंट्रिकल्स हैं जिससे ब्लड को जाना है बॉडी में, तो हमने उसको दबाना है। जैसे अर्जुन की आंख जो है मछली में थी, अर्जुन का जो निशाना था मछली की आंख पर था, तो मेरा निशाना उन 2 वेंट्रिकल पे है। हार्ट के 4 कमरे हैं, 2 भरते हैं और 2 फेंकते हैं, और भगवान ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि जो वेल्स भरते हैं वो नीचे की तरफ है, तो अपने आप ब्लड नीचे आता रहता है, कोई मेहनत नहीं चाहिए। फेंकने के लिए मेहनत चाहिए कि मैं दबाऊंगा तो ब्लड वहाँ जाएगा, और ब्लड को कहाँ आना है, हार्ट से बहुत दूर नहीं है, ये ब्रेन तक, कि मैं जिंदा रहूं। तो ये टेक्निक से माय एफर्ट इज नॉट कि मैं उसका ब्लड प्रेशर आ जाए या अभी जाग जाए, एटलीस्ट मेरा ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलती रहे कि वो उसकी मृत्यु ना हो जाए। अगर वो ना कर पाया तो शायद हार्ट आ जाएगा, लेकिन फिर वो वेजिटेबल हो जाएगा। इंसान जिंदा तो है लेकिन किसी काम का नहीं है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो द रिस्पॉन्स हैज़ टू बी वेरी क्विक। सो वंस वी सी अ पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग और हैज़ फॉलन डाउन, या गिर गया, एकदम बेहोश हो गया या गिर के गया, तो मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं कैसे चेक करूँगा कि उसको सांस आ रही है नहीं आ रही। तो मैं जनरली 1 2 3 देखूँगा, नॉट ब्रीदिंग, ये मुझे देखने में पता लग जाएगा, छाती में नहीं ब्रीथ कर रहा। और द फर्स्ट अप्रोच आई विल डू इज चेक, आर यू ओके, आर यू ओके। अब तीसरी बार फिर करूँगा, बिकॉज आर यू ओके। अब इतना चेक करने के बाद कोई ना कोई किसी न किसी तरह की रिस्पॉन्स जरूर देगा। पहले हम सिखाते थे हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, देखो, तो अब देखो उसके मुंह में कुछ है या नहीं। ये सिंपल एक ही टेक्निक आपने देखनी, आई ओके। कई बार मुंह में कुछ फंस जाता है, सांस बंद हो जाता है, आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है, उसको निकालने से सब कुछ खुल जाता है। तो वो क्रिया करने में टाइम लगता है। कई बार आप नहीं भी करना चाहें, कोई ऐसा आदमी आपको नहीं पसंद आ रहा, मैं नहीं निकालूं, कोई बात नहीं, आप मत करो, आप सिर्फ इस पे फोकस करो। नाउ ऑल ऑफ यू शो मी योर राइट हैंड एंड पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन। देखा, आप इसको पकड़े, इससे 4 उंगली ऊपर जाना है आपने। दिस इज द लोकेशन ऑफ योर हैंड, ये हैंड। तो अपना लेफ्ट हैंड पहले दें, इस पे राइट रखें, दिस इज योर पोजिशन, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द एल्बो, एब्सोल्युटली स्ट्रेट। नाउ यू फाउंड द सेंटर ऑफ द चेस्ट, this elbow, and you start the compression. अब आपके दिमाग में वही अर्जुन का तीर और मछली की आंख है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, कि हमने वे दबाते रहना है, और इससे मेरा ब्लड जो है ब्रेन में आ रहा है। और ऐसा ये मैं जो कर रहा हूँ हम कहीं पर भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज पीपल लेट यू डू इट। सपोज इन योर शॉपिंग मॉल, अब तुम कर रहे हो, क्या कर रहा है, तो हमारी पब्लिक ही हमारे लिए हॉस्टाइल ना हो जाए, कहीं मुझे ही पीटना लग पड़ा है, तो उसको बताना पड़ेगा जी मैं डॉक्टर हूँ या मुझे ये आता है, तो आप ये करें। इससे अनगिनत लोग अभी भी बचाए जा रहे हैं और जाते हैं। आप YouTube में CPR रिसर्च के ऊपर देखें तो कम से कम 1000 वीडियो आएंगे। सो ये आपने कंटिन्यू करना है। इसमें 2 चैलेंज है, साइज ऑफ द पर्सन एंड योर साइज। अगर आप बहुत छोटे हैं और आप मुझे मिल गए या मैं मिल गया तो मुश्किल हो सकता है, बट फिर भी आपका जो एफर्ट है वो मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि मैं इसको दबा दूं, और अगर मैं इधर दबाऊंगा कोई फायदा नहीं है। सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये देखिए, इसको पकड़ के, बहुत इजी नहीं है, ये करते हुए हड्डी टूट सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं,
रूटीनली टूट सकती है, वो जुड़ जाएगी, लेकिन ज़िंदगी तो आ जाएगी। तो ये क्रिया आपने 100 पर मिनट करनी है। द इम्पॉर्टेंट इज रेट। अगर मैं कम करूँगा तो काफ़ी नहीं है, बिकॉज इतनी देर में ब्लड वापस आ नहीं रहा, बिकॉज हम करीबन 60 to 80 ml ब्लड एक बार में ब्रेन की तरफ भेजते हैं जागे हुए। जब हम बेहोश हो जाएंगे तो शायद कम भेजते हैं, तो मुझे उसका रेट बढ़ाना पड़ेगा कि मैं उतना ब्लड भेजता रहूं। और ये आपको अभी भी अजीब लग रहा होगा कि ऐसा होता है क्या, ऐसा रूटीनली हम करते हैं और इससे हम बचा लेते हैं। और बच के हमारे पास कई पेशेंट हैं, हमारे पास मैनेजर भी हैं मार्केटिंग के, लड़की लाए हैंगिंग करके, शी वॉज पार्शली हैंग्ड, नो हार्ट अटैक, नो हार्ट देयर, brought to a hospital in 5 minutes, 5 to 7 minutes after hanging. लाइगेचर मार्क है, हार्ट नहीं है। हमने उसको रिवाइव किया, वेंटिलेटर पर रखा, अबाउट 10 days she was alive. 3 days she was not waking up because of hypoxic injury, हुआ होगा ऐसा। बट ये करने से कि हमने लाए इमीडिएट CPR, इंट्यूबेट, वेंटिलेट, सब कुछ किया। तो ये साइंस की ये टेक्निक है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पीटर सफर, जिसने शुरू किया, बिकॉज एक हार्ट सर्जरी चल रही थी तो उसमें हार्ट बंद हो गया। तो कहता अगर ये हार्ट बंद हो गया तो बाहर जितने रिश्तेदार हैं मुझे गोली से मार देंगे। तो उसने क्या किया, कहता अब मरता क्या ना करता, उसने हार्ट को हाथ से दबाना शुरू कर दिया, खुले ओपन हार्ट में दबाना शुरू कर दिया, हार्ट चल पड़ा। तो तब से पीटर सफर ने ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन शुरू की। Before I finish, I must tell you that the heart functioning is due to 2 reasons: good blood supply and good electrical current. Now, to feed yourself very well, अपने आप को, जो आदमी बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो हार्ट सबसे पहले अपने आप को ब्लड देता है। वो वेसल्स जो हैं 3, लेफ्ट, राइट और सेंट्रल जो है, वो हमारे हार्ट को पहले ब्लड देती है। उनकी सप्लाई खत्म होने से या कम होने से हमें हार्ट अटैक होता है, जिसमें चेस्ट पेन होता है। कहते हैं हम उसको LAD है, RAD है, ये प्रॉब्लम हो गया, सिंगल वेसल डिजीज, डबल वेसल डिजीज, तो वो ब्लड सप्लाई है। सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट इंपॉर्टेंट है, जो इन सारे हार्ट को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलाता है। कई बार हार्ट में ब्लड सप्लाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट ठप से रुक गया। इसको हम ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर से जगा के रीस्टार्ट कर सकते हैं। वो मशीन होनी चाहिए। पहले ज़माने में हम मुक्का भी मारते थे कि शायद दाग जाए, ऐसा होता था, लेकिन अब वो नहीं करते। बट AED मशीन है और उसके करने से हम 30 to 40% हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे, बिकॉज हार्ट उस वक्त एक स्टन्ड सिचुएशन में है कि बंद हो गया खटक, तो उसको हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि हर एक एयरलाइन में एयर होस्टेस होती हैं, हर एक एयरक्राफ्ट में। तो एयर होस्टेस का काम क्या होता है? आपको कोका कोला पिलाना। कैबिन क्रू इज ट्रेन टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, CPR and AED. There have been many incidences on long haul flights कि कैबिन क्रू ने बताया, CPR किया, बचाया और फिर दूसरे चक्कर में हवाई जहाज को डाइवर्ट कराया। ये होता है। तो कैबिन क्रू इज द ट्रेन्ड फर्स्ट एडर जो हवाई जहाज में है। हर एक वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट में आपको AED मशीनें मिलेंगी, तो वो आपके पास हैं। तो AED मशीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी छोटे छोटे ग्रुप्स में करेंगे, सो दैट आप अपने कोर्ट में भी कुछ एक 5-6 लोगों को हर एक डिपार्टमेंट से ट्रेन करा सकते हैं। एवरीबडी इज नॉट पॉसिबल, बट देन सम पीपल कैन बी मेड, जैसा आपका वर्ड है नोडल ऑफिसर, सो नोडल हेल्थ केयर प्रोवाइडर या नोडल ट्रेनर या somebody who's trained in CPR, etc. So that can be very helpful for the whole court. That ये है आदमी, तो उसके पास सामान भी है, सॉर्बिटेट भी है, कुछ चीज़ भी है, ब्लड प्रेशर का सामान भी है। अब who will build the cat? वो मैं तो नहीं कर सकता, नहीं। But then this could be a rolling responsibility between the group or whatever you think. So that way you can all be more involved. इसके ऊपर बहुत मटेरियल है, बहुत चीज़ें हैं। So I would say recognizing a cardiac emergency is important.
approaching is very important. This CPR is life-saving, which is a skill which you can learn, not difficult. You're most welcome to come to our hospital. It's not months of training, 2 to 3 days of training is there. We can teach you and train some people very well, which are inclined to learn as well. Because this cannot be forced. ये force से कोई नहीं सीख सकता. Then you can be better citizen and better way you can be helping people. Thank you very much. If you have any questions, I'm here to answer them. Yeah. स्टार्टिंग में सर आपने बताया कि कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कब कार्डियक अरेस्ट होने वाला है 15-20 मिनट पहले. तो जैसे आपने कहा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो हमें बताते हैं. व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कि कितने % की हमारी हार्ट बीट होनी चाहिए, कितने पल्स रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हम नॉर्मल हैं या अब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के बाद. लेट अस नॉट टच द नंबर्स. हम नंबर्स को टच नहीं करते. बिकॉज मैं आपके बीच में सेंसिटाइज करूँगा, आपको डराऊंगा नहीं. मेरा काम आपको डराना नहीं है, सेंसिटाइज करना है. सेंसिटाइजेशन में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द थिंग्स विच आर नॉट नॉर्मल इन यू. आपको क्या अनकंफर्टेबल लग रहा है. आप आराम से कंफर्टेबल बैठे हैं, हम सब बैठे हैं कमरे में. अब आपको डिस्कम्फर्ट जब होगा तो आप खुद फील करेंगे आई एम नॉट वेल. द फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, दैट इज फर्स्ट. इन डायबिटिक्स विच आर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, जिनको डायबिटीज 20 से 25 साल है, चल रही है, दवाई खा रहे हैं, उनमें तो शायद चेस्ट पेन भी ना हो. दे माइट नॉट इवन फील इट, दैट्स देयर. बट आप लोगों में डिस्कम्फर्ट होगा, चेस्ट पेन रहेगी, चेस्ट में हैवीनेस रहेगी, शोल्डर में पेन रहेगा. इट वुड रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म फॉर श्योर. वो आपको फील होगा. ये सब सिम्टम्स जब आप किसी को बताएंगे तो वो भी सेंसिटाइज होगा कि हाँ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है इसको. तो ये आपको चीज़ें दिमाग में रखनी है. जहाँ तक कि सॉर्बिट्रेट की बात है, आप ले सकते हैं. अगर आपको सॉर्बिट्रेट से आराम आ रहा है तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि मुझे करना है. बाकी मेरे पास यही है कि एक दवाई का सेट है जो कि हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा एस्प्रिन 300, क्लोपिड्रिक्वल 300, एट्रोवास्टेटिन 40, ये कॉम्बिनेशन है जो कि मैं लिख के आपको दूंगा, जो कि आप अस्पताल जाने से पहले ले सकते हैं फॉर ऑल चेस्ट पेन्स, वेदर दे आर कार्डियक और इवन नॉट कार्डियक. वो उससे आपको और डॉक्टर को भी आराम पड़ेगा. हाँ, कुछ तो लेकर आए. दीज आर ब्लड थिनर्स विच विल वर्क टू डिजॉल्व द क्लॉट. तो इसमें कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट या कोई ऐसी परेशानी नहीं है सिवाय बच्चों के. अब आप 14-15 साल के बच्चे को नहीं देंगे. ऑल एडल्ट्स कैन हैव दैट. इमटेरियल ऑफ एनी अदर इलनेसेस दे हैव. कोई भी बीमारी है उसके अलावा भी आप ले सकते हैं. प्लीज सर, इसको डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, एनीबडी. इनफैक्ट डायबिटीज मोर, बिकॉज डायबिटिक्स में चेस्ट पेन की संभावना कम होती है. दे फील लेस चेस्ट पेन बिकॉज डायबिटीज अपने आप न्यूरोपैथी है. तो वो नर्व को एंडिंग को डेड करती है. लॉन्ग स्टैंडिंग, नॉट 4-5 ईयर्स, जो 20-25 साल से डायबिटिक है उनमें चेस्ट पेन फील नहीं होगी. तो ऑल द मोर रीजंस आपको ज़रूर लेनी चाहिए. एक क्वेश्चन और है. आपने बोला कि जैसे आपने बोला कि डिस्कम्फर्ट लगेगा हमें, तो चेस्ट पेन, और इसका मतलब हम ये समझें कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो वो तभी कार्डियक अरेस्ट होगा जब लेफ्ट हैंड में भी आएगा. अदरवाइज कई बार एसिडिटी, गैस का भी कोई प्रॉब्लम होता है. बहुत क्लोज रिलेशनशिप है. एंड देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एंड चेस्ट पेन. अब आपने रात को, हमारे मित्र हैं बैठे हुए, पार्टी में गए, बहुत सारी शराब पी, बहुत सारा नॉनवेज खाया, एसिडिटी हो रही है, तो अब उसको बोला मुझे चेस्ट पेन भी हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? उसको डाइजिन दे के सुला दूंगा? नहीं, बिकॉज दैट इज़ ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही इज़ हैंडलिंग. तो उस वक्त उसको चेस्ट पेन उस वक्त भी हो सकता है. तो अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा? तो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड दिस इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ओवरलैप विच इज़ ए situation where you should go to the doctor and get your ECG done and a blood test which confirms. ECG alone is not confirmatory. And if possible, the hospital is good and you have a friendly doctor, ask him कि मैं 4-5 घंटे लेट जाती हूँ, तो वो important, उसको बंद. So that is very important.
सर वन लास्ट क्वेश्चन Yeah. सर, जैसे आपने एक पर्टिकुलर पोजीशन बताई कि लेफ्ट हैंड से हमें प्रेस करना है और उसके ऊपर राइट हैंड करना इस है। पोजीशन के पीछे बहुत रिसर्च हुई है, ये मैंने आपको बहुत जल्दी फटाफट बता दिया है, वो जी। बात सही है, बट प्रॉब्लम इज वी हैव सीन वेदर यू आर लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, आपको कुछ नहीं करना। तभी मैंने आपको बोला कि सिंपल, फर्स्ट शो मी योर लेफ्ट हैंड, पुट योर राइट ऑन टॉप, व्हेन यू पुट अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू पुट प्रेशर। तो ये साइंस है, इसकी जो बहुत गहरी साइंस। अमेरिकन अच्छा। हार्ट एसोसिएशन हैज बीन वर्किंग फॉर 40 years, so international liaison for cardiac diseases is working for more than 40-50 years. Peter Safar is 18th century. तो ये इस पे बहुत गहरी रिसर्च हुई है, ये सब हम करते हैं। कि इसको लेफ्ट हैंड से ही करना है, क्योंकि जैसे राइट हैंड से मेरा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, लेफ्ट तो हैंड लेफ्ट से राइट करें, वो आपका इंडिविजुअल है। मेरा मतलब है कि मेरी चेस्ट कंप्रेस होनी चाहिए 1 से 1.5 इंच, प्लस मुझे ये फील होना चाहिए कि मैं हार्ट को दबा पा रहा हूँ। अब ये फीलिंग आपको, अगर आप रूटीनली नहीं करते तो नहीं आएगी, बट एटलीस्ट आपका कंप्रेशन चलता रहे, कुछ तो होगा ज़रूर। ना करने से कुछ तो करना ही चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। बट यू मस्ट लर्न, इफ यू हैव द इंक्लिनेशन, spending a Sunday with the hospital would not be a problem. Half a day. Any more questions? सर जैसे आपने बताया एक्सरसाइज करते वक्त भी कई बार लोगों को इस तरह की इंसिडेंसेस हुए हैं। लोग जिम में भी हमने देखा कई बार लोग एक्सरसाइज कर रहे हो अचानक से गिर गए, वीडियोस भी आती हैं। तो क्या पर्टिकुलर एज फैक्टर की वजह से ऐसा होता है, या वही फिर से क्वेश्चन वही आएगा कि हार्ट बीट 80 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, 120 है, कौन सी हार्ट बीट नॉर्मल है, या आदमी कैसे अपने आप को ये समझे कि यार मैं नॉर्मल हूँ? गुड क्वेश्चन। इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। आप व्हेन यू डू हॉर्स ट्रेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस, इलेक्शन मत छोड़ना, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग है जब हम किसी भी एनिमल को खरीदते हैं तो उसके बारे में उसका जानते हैं कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या पशु मेला में जाते हैं तो चेक करते हैं। तो जब हम इतने महंगे महंगे लायन मेसी या रोनाल्डो खरीदते हैं अपने ग्रुप के लिए, अपने क्लब के लिए, तो हम कैसे खरीदते हैं उनको? कोई आइडिया? हाउ डू यू रेट ए प्लेयर हेल्थ वाइज? कितने गोल मारे? दैट इज वन क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया इज कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस। उसका हार्ट और लंग 3 सेट खेल पाएगा, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड थर्ड हाफ। तो हमारे पास एक मशीन होती है, उस पर हम उसको चलाते हैं 100, 110, 120, 130, फिर उसका ब्लड टेस्ट साथ साथ चलता है। तो हम देखते हैं कि इसका हार्ट इतना स्ट्रेस ले लेगा। इस टेस्ट का जनरली कॉस्ट 60-70 हज़ार रुपये है बेसिक, प्लस 70 हज़ार से महंगे उसके डॉक्टर हैं जो उसको इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ ये घोड़ा चलेगा या इस स्पीड से चल पाएगा। सो दिस इज हाउ वी रेट द क्वालिटी ऑफ हेल्थ ऑफ ए पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन। अब आपने लिया, उठाया जिम, कोई इसमें जिम में चले गए और वहाँ छोड़ने वाला, चलो वन मोर, आपका हार्ट इतना है नहीं, ना आपने टेस्ट कराया हुआ है। सो एंड बिलीव यू मी, जस्ट कॉमन सेंस, नेचर ने जब से हमें बनाया है, जब से हमारी कोई स्पीड 110 रखी है कि मैं ट्रेडमिल पे 8 पे भागूं, भगवान ने हमें इसके लिए बनाया है? नहीं बनाया। मुझे करा है कि मैं 10 पे भागूं या मैं 110 किलो का एक बार हूं, इसके लिए नहीं बनाया है। हमें बनाया खाना पीना उगाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जाने के लिए। खा के ज़्यादा थोड़ा बड़े हो गए तो उसको छोटा कर दो, बस। अब उसमें आप उसको एक्सट्रीम पे ले जाओगे, अब एवरेज पे चढ़ोगे तो नेचुरली चांसेस ऑफ डेथ आर वेरी हाई। तो आप उस एक्सट्रीम पे जाने की चाहते हो तो वो नहीं करना। अगर आप वॉक करते हो 30 मिनट, नो अमेरिकन जर्नल, नो कार्डियोलॉजी जर्नल विच वर्क्स ऑन हार्ट फुल टाइम सेज दैट यू शुड डू ट्रेडमिल फॉर 40 मिनट्स टू 1 आवर। मैं जब जिम जाकर देखता हूँ, स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे वो 1.5 घंटा जिम कर रहे हैं, 1.5 घंटा ट्रेडमिल कर रहे हैं, कोई गाइडलाइन ही नहीं है, ना ट्रेनर, वो भी नहीं है। सो यू डोंट डू दैट। सर जैसे ट्रेडमिल पे आपने बताया, तो ट्रेडमिल पे अगर हम स्पीड ज़्यादा ना करें, हम वॉक कर रहे हैं, हम आधा घंटा वॉक कर रहे हैं, तो वो It's a good, that's as good as morning walk. But a better machine, if you are all so keen on gym, better machine is a cross trainer. Cross trainer is always a better machine than treadmill for those who are above 40 years of age. Is easier, safer, less stress on the heart, and you will do more cardio on a cross trainer than on a treadmill.
ये रिटन है, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ इसके पीछे स्टडी है, ये मेरे अपने सोच से नहीं है. So cross trainer is what you should look for if sir is going to go to the gym. Cross trainer, no treadmill, because हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं. तो ट्रेडमिल टेस्ट में क्या करते हैं हम हॉस्पिटल में, आपको एक स्पीड से बढ़ाते हैं, चलाते हैं, फिर हार्ट में चेंज देखते हैं, फिर हम उसकी इंक्लाइन बढ़ाते हैं, फिर चेंज देते हैं. इसको बोलते हैं ब्रूस प्रोटोकॉल. तो उस प्रोटोकॉल पे हमने आपके हार्ट को टेस्ट करना है. तो पहले थोड़ा तेज चलाकर, फिर इंक्लाइन बढ़ाकर, फिर देखते हैं जैसे ही हार्ट में चेंजेस आए, वो चेंजेस आते हैं तो हम आपको कहते बस ठीक है अब यहाँ पर वापस आ जाओ. अब ये हार्ट के चेंजेस तो आपकी मशीन पे नहीं आ रहे ना, आप उसको पकड़ के अपना हार्ट रेट ही देख रहे हो. तो जो इनका सवाल है कब तक, तो यू कैन ओनली डबल योर स्टार्टिंग हार्ट रेट. अगर आप 60 से शुरू कर रहे हैं तो अपनी स्पीड या एक्सरसाइज की म्याद या उसकी लिमिट उतनी करें कि आपका हार्ट रेट डबल हो जाए. बस 60 से 120 और ख़त्म. 80 पे चला तो 140 150 इज फिनिश्ड. डोंट गो क्रॉस दैट. योर हार्ट इज नॉट मेंट फॉर दैट. तो उसकी एंड्योरेंस है. उसके बाद उसके ये हार्ट के मसल्स ही तो हैं जो चल रहे हैं, तो उनको आप बहुत तेज चलाओगे तो वो बीच में फंस जाएंगे. क्यों उससे हमने परेशानी करनी? वाई शुड वी ट्रबल माई ओन हार्ट? इफ यू सी एनी जापानीज मैन, दे डोंट डू एनी ट्रेडमिल, दे डू कथा, योगा, समथिंग लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. वो किसी को देखा आपने कि वो 110 की स्पीड से ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहा है? नहीं. और जितने भी फील्ड गेम्स हैं, and if you study the demography of the cardiac problems, it is more towards the Asian side. हम अफ्रीका में इधर में ज़्यादा है हमारे पास हार्ट अटैक, उधर कम है. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कम है, बिकॉज दे आर टेकिंग लाइफ मोर इजीली. द स्ट्रेस इज लेस. एनीथिंग एल्स? You told us about the smart machine that we can install in our body. इट इज़ देयर. It's there. हाँ, Anyone can get it installed. Is there? अभी रेडी है, इनके पास सारा मसाला पूरा रेडी है. आप हमारा हिंदुस्तान अलाउ करे तो वो आ जाएंगे. वो अमेरिका में सब कुछ रेडी है. नॉट ओनली अमेरिका, स्वीडन में. दिस इज द फ्यूचर बिजनेस इन कमिंग 10 years. What I want to know about you is your heart rate, blood pressure, temperature, and then what you eat and what you do. उसके बाद मैं आपके हिसाब से आपका खाना वाना टेलर करूँगा, आपको बोलता रहूँगा, SMS आते रहेंगे, आपको टेलर करता रहूँगा. सो आई एम प्रैक्टिकली कंट्रोलिंग यू. सो दैट इज़ ईजी. अगर आपने स्मार्ट वॉच एप्पल डाल दो या जो बड़ी स्मार्ट वॉच डाल दो, तो सारे पैरामीटर्स हम उसको कंट्रोल करते हैं. You know, sir, this systolic और diastolic हमारा 80 और 120 होता है, right? तो is there any relation with age? मतलब it gets increased by? इट इंक्रीजेज बाय एज. आपकी जो ब्लड चल रहा है वो एक वेसल्स में चल रहा है, तो वेसल एज के बाद टफ हो जाएंगी, तो उसमें निकलना चढ़ना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन डॉक्टर्स सेज कि irrespective of age it should be 80 or 120. अब डॉक्टर्स आपने बोला है तो अब वो बड़ा मुश्किल सवाल है कि कौन से डॉक्टर्स, है ना. इट विल चेंज. Everybody नहीं having different opinions. नहीं मैम, देखो द गाइडलाइंस विच वी ऑल डॉक्टर फॉलो. आई एम in front of an August gathering. Guidelines which we all follow is WHO guidelines. 140/90 is the cutoff. 140/90 is the cutoff for normal blood pressure. Beyond that is high blood pressure. So we need to bring everybody below 140/90. I have not discussed and touched a very important element called stroke, which has got lot of relationship with blood pressure management and uncontrolled blood pressure. I think strokes are more dangerous and very, very expensive for the society than heart attack in terms of quality of life and other things, which is a different topic. So 140/90 is the cutoff, 128 is the best, but then beyond that you need to get treatment for that. सर CHF के भी आज तक सुनते हैं कि छोटे बच्चों तक भी 20-21 साल के लड़के. CHF अब आप थोड़ा और गहरे आ चुके हैं. CHF अलग बात है, लेकिन मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. हमने कई जगह जैसे स्कूलों में हेल्थ चेकअप भी किए हैं. स्कूल में बच्चों का एवरेज ब्लड प्रेशर 130/90, 140/90 है, और परसेंटेज इज 30 to 40%. About 20% children I've diagnosed as hypertensive in schools, which never knew that they were hypertensive, and in good private schools. And I told the principal, sir, क्या करें इसका? साहब रहने दो इसको, because it's a bag of worm. If we open it, we get into problem. We only give a letter to your parents that your child was screened for health by health department today, and your blood pressure is 150/90. Obesity is about 20%.
And not only in public schools, in government schools also, 13 to 14% obesity, कैपिटल सिटी में. तो ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है. इसलिए हम हेल्थ चेकअप से थोड़ा कतराते हैं कि जितना पैरामीटर मुझे मालूम होगा उतना मैं. अब अपना ब्लड टेस्ट करा लो. आज जैसे कुछ लैब्स हैं जो 150 पैरामीटर कर देती है 1500 रुपये में. तो 150 1500 में करके आपके उसमें से 22 पैरामीटर खराब होंगे. आपको जो रात को नींद आनी थी वो भी नहीं आएगी. अब आप क्या करोगे? उस डॉक्टर के जाओगे. उस डॉक्टर को गुस्सा भी आएगा, उसको भी दो. मैं तुमने टेस्ट कराए खुद 2000 रुपये के, अब मेरा तुम 2 घंटे टाइम खराब करोगे. हर एक का सर ये नीला क्यों है, ये पीला क्यों है. पहले कराए क्यों? मैंने तो नहीं बोला था आपको कराने के लिए, आपने खुद कराए और खुद में जो डंडे आ रहे हैं. तो भी अपना सबसे अच्छा कोई डॉक्टर फ्रेंड बनाओ जो आपके अजूल फजूल सवालों का जवाब दे और आप गलत शलत अपने टेस्ट वेस्ट ना कराएं. इससे आपका भी फायदा, देश का भी फायदा. डॉक्टर का तो क्या ही फायदा होगा, लेकिन आपका फायदा जरूर होगा. सर जो आपने मेडिसिन बताई एस्प्रिन एंड ऑल, क्लोपिडोग्रेल, एस्प्रिन और हाँ जी. एट्रोवास्टेटिन. हाँ. तो ये क्या हमें हर समय अपने साथ कैरी करनी है क्या? नहीं, आई थिंक नहीं. मैं फिर वही बात, मैं डर दहशत नहीं फैलाना चाहता. मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपको डिब्बी रखनी चाहिए. जैसे सर के पास है कोई फर्स्ट एड रूम है, उसमें आप रखवा दीजिए. तो उसमें लिखा हुआ है कि एंटी क्लॉट बस्टर या हार्ट अटैक किट, खत्म. 3 गोलियाँ इसमें, 2 साल की एक्सपायरी है, खराब तो होगा नहीं. तो आप 2-3 माचिस की डिब्बी में 3-3 गोली रख के रख दो. 1 2 3, एक खाली दूसरी पड़ी हुई है. सो दे आर नॉट इनएक्सपेंसिव, रिकमेंडेड. सो देयर इज नो हार्म इन कीपिंग. घर पे भी रख लिया तो अच्छी बात है. तो आपको इनएडवेंटली अगर गलती से खा भी ली कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है वाइफ पे, वाइफ को गुस्सा आ रहा है, गोली खाली में थी, तो खा लेने दो, कोई दिक्कत. इससे कुछ नहीं होगा. इज नॉट डेंजरस, इज नॉट गोइंग टू किल. तो ये तीनों टेबलेट्स एक साथ खानी है या इकट्ठी खानी है? ठीक है. इकट्ठी. chew them if possible. नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्कार. डॉक्टर साहब, कोविड के बाद अभी ऐसे पता चल रहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेने से हार्ट अटैक प्रतिशत ज़्यादा बढ़ गया. इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है? Very difficult topic to answer and I would not become Anthony Fauci here because बड़ा मुश्किल सवाल है ये, और मेरा कुछ भी इस पे कहना बड़ा पेनफुल होगा बिकॉज ये मेडिकल फ्रेटर्निटी का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. आई वुड लाइक टू, यस, कोविड से लंग में चेंजेस आए हैं. मैं उसकी वैक्सीन के बारे में नहीं बोल रहा. कोविड से लंग में चेंजेस आए हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आए हैं. तो आई वुड सजेस्ट हमें धूम्रपान इत्यादि से अब तो दूर रहना ही चाहिए. तो आई थिंक आई वुड नॉट कमेंट ऑन द वैक्सीन एट दिस मोमेंट बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर answering you on the vaccine. Thank you, sir. It's very interactive. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर साहब. डॉक्टर भारद्वाज, आपने बड़े सिंपल लैंग्वेज में हमें जो सारी चीज़ें बताई, शायद थोड़ी कॉन्शियसनेस तो हमारे अंदर आई है ना, पर वो कितनी रहती है, हाँ, कितनी सस्टेन करते हैं हम उसको, वो डिपेंड करता है. नहीं तो दरअसल ये होता ही है कि लेक्चर सुना, ऊपर गए, हम बर्गर वगैरह खाया और है ना, वो ख़त्म हुई सारी कॉन्शियसनेस. पर यस, दिस इज़ लाइक दैट कि जैसे सत्संग करते हैं हम, तो उसमें होता है ना कि झूठ मत बोलो, ये मत करो, वो करो. तो जो धूल जम जाती है हमारे विचारों पर, वो थोड़ी छटती रहे तो वो कॉन्शियसनेस बनी रहती है. और ये मौन वाला टॉपिक तो रियली में टफ है. अपने माइंड को शांत रखना, करना, पर जितना कर पाते हैं उतना फ़ायदा रहता है. और इसको दोबारा हमारे दिमाग में लाने के लिए थैंक यू. और बहुत सरल भाषा में आपने जैसे हमें सबको बताया चीज़ें, बहुत उपयोगी रहेगा हमारे लिए. और आई होप स्टाफ मेंबर्स को अच्छा लगा है. तो अगेन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन. थैंक यू डॉक्टर साहब. Thank you, sir. Thank you.